Hello, students. Okay, yesterday we were doing direct and indirect speech, and we had done some rules which are applicable for basic tenses, personal pronouns, verb forms, different verb forms we have done. Okay, um, today, actually, yesterday we had also done what are the rules which are applicable for a sentence which has a time context in it. Today we'll continue with uh, the time context and some place references also. Okay, when a sentence has a time context in it, or the place references, time references or place references, then if the sentence has like words like now, today, here, then when we change those sentences into indirect speech, into reported speech, then those words also change. Okay, वो सारा वर्ड्स भी चेंज हो जाता है. फॉर इंस्टेंस, इफ द सेंटेंस हैज, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई जो सेंटेंस है उसमें टाइम रेफरेंस नाउ बताता है, ठीक है, नाउ बिकम्स देन. ओके, टुडे बिकम्स दैट डे, हियर बिकम्स देयर, this becomes that, this week becomes that week, tomorrow becomes the following day, or the next day, or the day after. Okay, next week becomes the following week, the next week, the week after. Yesterday, the previous day or the day before. Last week, either the previous week or the week before. Ago, previously हो जाता है, या फिर before. 2 weeks ago becomes 2 weeks before. Okay, tonight becomes that night. Last Saturday, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है. लास्ट सैटरडे, द प्रीवियस सैटरडे, कोई भी डे ऑफ द वीक हो सकता है. नेक्स्ट सैटरडे, द फॉलोइंग सैटरडे हो जाएगा. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स क्विकली लुक एट वन एग्जाम्पल ओवर हियर. एग्जाम्पल है, डायरेक्ट स्पीच में है. द सेंटेंस इज, I went to the theatre last night. When we change it into indirect speech, it becomes, he said he had gone to the theatre the night before. Okay? There's one more example here. Direct speech में sentence है, I came over from London 3 years ago. When we change it into indirect speech, what will it be? He said he had come over from London 3 years before. Okay? Alright, there are certain rules that जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं, जो फॉलो होता है, स्पेशली जब सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ रहता है, हैबिचुअल फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स, हिस्टोरिकल इवेंट, ये सब चीज़ें जब रहती हैं सेंटेंस में, तब कुछ रूल्स है जो फॉलो करते हैं हम लोग वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या फिर फ्रॉम रिपोर्टेड टू डायरेक्ट. ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे? यूनिवर्सल ट्रूथ आर दोज लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, the sun rises in the east. This is a universal truth. You cannot change it. The sun rises in the east का मतलब रोज राइज करता है ईस्ट में ही करता है, ठीक है. You cannot say the sun was rising in the east, rose in the east. ये सब चेंज नहीं होता है, ठीक है. जैसे फॉर इंस्टेंस प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमेशा हर जगह पर इज ही रहेगा, ऑनेस्टी इज ही रहेगा. चेंज होकर कभी भी ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं बन जाएगा, ठीक है. ऑलराइट, rule number 1 says, if the reported speech states some general, universal or habitual truth, proverb, historical event in the past, improbable future condition, the present tense used there is not changed into the corresponding past form. अगर इन सब सूरतों में सेंटेंस रहेगा जहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज किया जा रहा है, ऑफकोर्स जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये सब सूरतों में चेंज नहीं होगा फॉर्म. प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, ठीक है, पास्ट फॉर्म में नहीं चेंज होगा. रूल नंबर 2 सेज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया सिंपल पास्ट टेंस, और द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट चेंज्ड इफ द रिपोर्टेड स्पीच, इफ द इनडायरेक्ट स्पीच स्टेट्स 2 actions which took place at the same time. और कब नहीं चेंज होता है? रूल नंबर 2 क्या बता रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में एक वक्त पे 2 एक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है. ऑलराइट, रूल नंबर 3 सेज
The simple past is not changed if the reported speech, indirect speech, states a past historical event or fact. Simple past में है, ठीक है. जो तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच है वो सिंपल पास्ट में है, जहाँ पर कोई पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट या फिर फैक्ट के बारे में बात हो रही है. इस कंडीशन पे भी जो सेंटेंस का टेंस फॉर्म है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है. एग्जाम्पल देख लो. डायरेक्ट स्पीच है, माई फ्रेंड सेड आई एम एन अर्ली राइजर. व्हेन वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा ये? माई फ्रेंड सेड दैट ही इज एन अर्ली राइजर. ही वॉज एन अर्ली राइजर नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज लाइक एग्जाम्पल है, देखो. डायरेक्ट स्पीच है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. व्हेन वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं हुआ ये, ठीक है. चेंज होकर जैसा फॉर्म था ऑनेस्टी इज, वैसे यहाँ पे भी ऑनेस्टी इज ही रहा. ओके. रूल नंबर 4 says that past tense subjunctive, जैसे would like, would rather, would be, ये सब जो रहता है ये सब past tense subjunctive है, ठीक है. ये भी चेंज नहीं होता है. these also do not change. for example, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, he said I would rather she played. इनडायरेक्ट में जब इसको चेंज करेंगे हम लोग क्या होगा ये? he said that he would rather she played. would rather remains the same, चेंज नहीं हुआ यहाँ पे. ओके. रूल नंबर 5 says प्योर इमेजिनरी कंडीशंस, ठीक है. प्योर इमेजिनरी कंडीशंस जैसे इफ आई वर, इफ शी वर, इफ ही वर, जो भी ये सब जो इमेजिनरी कंडीशंस होता है, ठीक है, इन सब सूरतों में भी फॉर्म जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल, द डायरेक्ट स्पीच इज ही सेड इफ आई वर रिच आई वुड सेटल इन मुंबई. ये तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच है, कोटेड लाइंस. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा ये? ही सेड दैट इफ ही वर रिच ही वुड सेटल इन मुंबई. फॉर्म चेंज नहीं हुआ, ठीक है. इट रिमेन्स द सेम. ऑलराइट, लेट्स स्टॉप हियर. whatever point has been explained today, students, please go through it, ठीक है. डेली का वर्क जो है वो डेली बेसिस पे रिविजन करने से एक्चुअली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा रोज का काम कर लोगे तो. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग, रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.